going to do two things to you. First, it is going to protect you, and second, it is going to push you. And before I get into anything practical, I'm going to tell you something very personal, because this episode is about my personal regret number one. I just got done with my law school. I am now a law grad. But back in law school, when I was in third year, second year, I had my YouTube channel, this channel. It was doing good. People were watching, I had a voice, I had my own platform. But then I committed a mistake, which I wish I could undo. I left it to be a good law student, to be a good UPSC aspirant, to be good in the serious stuff in life. And what am I doing today? I am building that same channel, that same platform that I had from scratch. I was getting placed somewhere, and on the day when I had to just go there and everything was set, I said a no. ऐसे बीच में हर बार पापा मम्मी ने कुछ ना कुछ नए नए जॉब ऑफर्स लाते रहे, लेकिन मैंने सबको, क्योंकि आगे बढ़ना सही नहीं लग रहा था. And later I realized maybe this is what I want. That clarity, it only came because of everything that I had explored. मैंने YouTube किया था. I knew how it felt, how it functioned. मैंने social media पे ध्यान दिया था, तो I knew what challenges I am going to face. And I want you to have all those experiences much earlier than I did. By the way, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं बताऊँ, आज मैं इम्तियाज अली से मिलने वाली हूँ. द इम्तियाज अली, ठीक है. एंड हिज मूवी हैज बीन वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ मी रियलाइजिंग दैट ब्रो, इज दिस व्हाट आई एम डूइंग इन फॉर होल ऑफ माई लाइफ नाउ. बाय. अच्छा, उस बारे में मैं व्लॉग भी बनाऊंगी, वो मैं जिस चैनल पे डालूंगी मैं उसकी लिंक नीचे डाल दूंगी. मैं इंस्टाग्राम पे भी उसका कंटेंट अगर मैं मिल पाती हूँ तो मैं बिल्कुल वो सब शेयर करूंगी. एंड इफ यू वांट दैट, आप नीचे हैंडल्स पे जाके देख सकते हो. इस मूवी में इस वीडियो में हम फोकस करते हैं अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर्स. Hi, my name is Ananta and welcome to the third episode of first year law school guidance series that we're doing to help you all little figure out थोड़ा बहुत. बाकी सब अपने आप ही सीखोगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है पता होना चाहिए, काश मुझे कोई बोल देता. And if it even helps one single person, it's a success. So here's the thing that no one tells us when we join law school. इंडिया के हर लॉ कॉलेज में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, सब वही सेम चीजें पढ़ रहे हैं, सेम डिग्री ले रहे हैं और सेम क्वालिफिकेशंस के साथ बाहर निकलेंगे. What is going to distinguish you is everything that you do apart from your studies. 9 CGP, यार कोई ठक ठक कर रहा है. हाँ, 9 GPA मेंटेन करना बड़ी बात है और it is a little distinguishing factor, but सब नहीं ला सकते 9 CGPA और सबको बहुत सारी चीजें भी करनी होती हैं. So what you do apart from your academics is going to define you. Apart from your degree is going to define or distinguish your experiences, your projects, the skills that you picked to learn up, the things that you did, the competitions you participated in despite having no confidence in yourself, the committees you joined, the initiatives you took, and the city that you explored. Everything that is going to be your differentiator. That is going to make your CV not look like a template. And that's what will give you topics to talk about when you have a conversation with a stranger or when you go in an interview. Real life stories, real incidents, real experiences, not just your degree. And you know what makes first year very, very special is that you do not have any pressure. I understand you might come from a humble background, from a family that is struggling, and you really want to work hard for supporting them. But you know, आप 5 साल तक तो उनको हेल्प नहीं ही कर पाओगे ना. तो 5 साल आप एक ऐसी चीज में दो, पढ़ाई के साथ, सारी सीरियस चीजों के साथ, जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस भी बिल्ड कर रहे हो. फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप का इतना प्रेशर नहीं है, प्लेसमेंट का कोई प्रेशर नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट फ्री टाइम यू विल बी इन द लॉ स्कूल. वैसे मुझे अब मैंने, क्योंकि अब मैं हाइंडसाइट में देख रही हूँ ना, मतलब अब मेरा हो चुका है लॉ, अब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार ये सारा टाइम, बहुत सारा टाइम था, सब कुछ किया जा सकता था इस टाइम पे. बट ठीक है, हो सकता है ये चीज आपको फिगर आउट होने में शायद थोड़ा लेट हो जाए. बट मैं कह रही हूँ, अगर मुझ पर थोड़ा भी भरोसा कर रहे हो, दैट इज टोटली अपॉन यू. कि एंड मैं सच्ची में बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि यार आप लोग वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करो, हर वो चीज करो जो यार ऐसा करके ट्राई करके देखना है. फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, कुछ एक रैंडम सी स्किल सीखना हो, कुछ भी हो. सॉरी गर्मी लग रही. वो सब करो. नहीं होता है
कॉलेज इतना बिजी कि मैं कुछ और ना कर पाऊं. अगर मैं चाहती हूं ना तो मैं टाइम निकाल लूंगी किसी भी तरीके से. सो एक्सप्लॉइट इट, एक्सप्लॉइट दिस टाइम, एक्सप्लॉइट दिस सिटी, एक्सप्लॉइट द कॉलेज, एक्सप्लॉइट योर ओन पोटेंशियल, बिकॉज दिस टाइम विल फ्लाई अवे फास्टर देन यू थिंक. मुझे लगता था भाई 5 साल है. But first, let me expand for you what I mean when I'm saying getting into extracurriculars, doing what you want, and all of it. Because it is not just about college society. Yes, it includes mood court competitions, academic activities that you do, writing research paper and all of that, going to conferences, events, कल्चरल कमिटीज ज्वाइन करना, एवरीथिंग. पर मेरी डेफिनेशन थोड़ी और वाइडर है जब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर की बात कर रही हूँ. इट ऑल्सो इंक्लूड्स दूसरे कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स, दूसरे कॉलेज के इवेंट्स, फेस्ट्स, वर्कशॉप्स दैट आर हैपनिंग इन योर सिटी, थिंग्स दैट यू वांट टू डू अपार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दीज स्टडीज एंड कॉलेज. सो स्टार्ट फॉलोइंग जिस सिटी में आप जाने वाले उसके इंस्टाग्राम हैंडल्स को. 4-5 इंस्टाग्राम हैंडल देखो, उनको फॉलो करके रखो. दीज विल पोस्ट अपडेट्स अबाउट some workshops happening, some concerts happening, some event happening, some talk happening, some founders giving speech, some personalities coming and meeting people. Follow those pages. तो अगर कोई भी चीज है you always wanted to try, या फिर कोई भी ऐसी चीज है that you never thought you will try except the wrong stuff, do it. Do it. You have time. You have no pressure, or you have freedom to fail. That is what I learned from Titan, जो मैंने अभी recently web series देखी. You have the freedom of failure. Do it. Do it for those experiences. बहुत सारी चीजें सिखा के जाती हैं. एक इंसिडेंट बताती हूँ. मुझे कुछ टाइम पहले एक लड़की का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे. She does not want to do law, or she's not very sure about doing law, but she is forced to do law because her parents want her to do law. And she wants to give it a fair try. ठीक है. But what she knows is that she wants to make her career in music. She wants to write music. She wants to make music. तो हमने बात की and we figured out कि यार हम ऐसा लॉ कॉलेज देखते हैं जहाँ पे म्यूजिक का अच्छा आपको एक्सपीरियंस, अच्छा कल्चर मिले, जहाँ पे यू कैन पुश योर सेल्स, मेक योर म्यूजिक, गेट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर्स, लर्न फ्रॉम अदर्स, और आप साथ में एक ढंग के कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ भी लो. Then we figured out maybe Mumbai is the right place for doing that. तो मुंबई में एक अच्छा कॉलेज चूज करते हैं और वहाँ के म्यूजिक क्लब्स को, वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेज में अगर मौका मिल जाता है म्यूजिक प्रोडक्शन में, कभी ना कभी इस पूरे 5 साल के जर्नी में, that will be good for us. Shift to that city. Practice, keep practicing your craft and study law with that. And वही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यार वो सारी चीजें हैं जो अगर मैं ये नहीं करती तो मैं ये करती, वो तुम साथ में कर सकते हो. आज हम इस मतलब हम जिस एरा में रह रहे हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं. लोग एक नहीं 2-2 चीजें, 3-3 चीजें कर रहे हैं साथ में. यू कैन डू इट. तुम्हें अगर लग रहा है डिग्री से ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आई डोंट नो, मे बी दिस इज लिटिल फॉल्टी थिंकिंग. क्योंकि सच्चा काम है ना. अगर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मेरी डिजाइन्स वंडरफुल हैं, आई हैव सम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज और माई वर्क इज वेरी यूनिक, आई विल गेट अ चांस. पीपल हु वैल्यू द आर्ट गिव यू अ चांस. तो डू एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू विद दिस डिग्री. स्कूल में कुछ करना चाहते थे, कभी किया नहीं क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था कि लोग मुझे जज करेंगे, ऐसा देखेंगे, वैसा देखेंगे. अभी उसका प्रेशर नहीं है, अभी तुम सब कुछ कर सकते हो. तो इस सिटी में जहां तुम्हारा कॉलेज है, म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना है, म्यूजिक क्लब ज्वाइन करो. स्पोर्ट्स ऑपरेशंस में वॉलंटियर करना है कि भाई आईपीएल का मैच हो रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, या कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है तो मैं वहां वॉलंटियर करना चाहता हूँ. नॉर्मली नीचे की जो रणजी ट्रॉफी वगैरह हो रही है उनमें अगर मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ या आई वांट टू बी अ पार्ट, स्टार्ट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ. पता है, और नोबडी इज वाचिंग यू एज क्लोजली एज यू आर थिंकिंग कि भाई ये जज करेगा, वो जज करेगा. मेरे लॉ स्कूल में ना मुझे सबने जज किया है, ठीक है. और मैं ये बात बहुत बेशर्मी से बोल सकती हूँ क्योंकि आई हैव ऑलवेज इग्नोर्ड दोज पीपल. मतलब मैटर करता है, कभी कभार लगता है कि यार ये क्या है. मतलब आई रिमेंबर पीपल कॉल मी, ओ व्लॉगर आ गई भाई, व्लॉगर आ गई. हाँ ठीक है, बोल लेने दो. बिकॉज कल अगर ये सब काम कर जाता है ना तो नोबडी विल केयर. अगर मेरी ये बात करना किसी 4-6 लोगों को हेल्प कर रही है ना, तो आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग. मुझे एट द एंड ऑफ द डे आई शुड स्लीप विद सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. अब थोड़ी सी ऐसी बात भी कर लेते हैं जो कॉलेज से एकदम रिलेटेड है, सोसाइटीज की. तो सोसाइटीज ज्वाइन करो, वो भी तुमको बहुत एक्सपीरियंसेस देंगी. एक्सपीरियंस के साथ साथ वो ये तुमको कनेक्शंस भी देंगी क्योंकि तुम एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म होगा तुम्हारे पास जहां यू कैन टॉक टू द सीनियर्स, build friendships, meet your own batchmates properly, and like vibe on something same.
So, okay, for people who want to know how do you enter college societies, how do these function, when you first join college, you will not immediately get a form or you'll not immediately be required to just sign up for these committees. Give it a few days, ठीक है, and then semester start होता है, उसके बाद you will get some of the other mails from different clubs. They'll be either sending you a Google form or some format, then you have to fill it, saying why do you want to join, what is your purpose, and how you can contribute, and all of those questions. Answer it with full heart. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. Then these people will pick some students जो उनको select करने हैं, and then they will call for interviews. और बहुत ही normal से interviews होते हैं. Hi, आप क्या contribute कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, how much time can you give to this committee, क्यों करना है, what have you done previously, ऐसा. एंड इसमें कहीं भी ये नहीं होता कि भाई इसने पहले नहीं किया इसलिए नहीं लेंगे. नहीं, वो चाह पे है, चाह दिखती है तो ले लेते हैं, इतना कुछ नहीं. Whenever you go into some interviews or something, go curious, don't go nervous. When you're in college, you will be hit by waves of opportunities. Mood competitions, alternate dispute resolution के अलग competitions, debates, client counselings, essay writing, policy, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे तुम्हारे पास events होंगे, बहुत सारे competitions होंगे, बहुत सारे ऐसे मौके होंगे तुम जबरदस्ती अपने आप को पुश कर सकते हो फॉर जस्ट गिविंग इट अ ट्राई. और पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूड्स, एडीआर्स, डिबेट्स ये सब एक ही टाइम पे हो रहा होता है, समटाइम्स इन द सेम वीक. एंड देन यू कीप वंडरिंग असाइनमेंट भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये सब कैसे मैनेज होगा. पर हो जाता है. थोड़ी एक आध चीज में थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट एटलीस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा एक्सपीरियंस होता है. आपको पता होता है कि दिस थिंग फंक्शंस दिस वे, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डू इट I'll do it good. बहुत टाइम तुम्हारी फर्स्ट चीजों में हमेशा इंस्टिंक्ट्स होंगे कि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई हैव नो क्लू हाउ दिस functions, मुझे तो रिसर्च करना भी नहीं आता है, एक्सेट्रा. एंड लिसन फॉर अ सेकेंड. अगर कोई एक्टिविटी इज ओपन फॉर फर्स्ट ईयर्स, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और द कॉलेज or the institution believes that you're already well eligible to be a part of it and that your level of knowledge is sufficient for getting into this competition. And that is when you don't disqualify yourselves thinking oh मैं इसमें अच्छा नहीं, मैं उसमें नहीं. कॉलेज सोच रहा है तुम अच्छे हो, उनको लग रहा है ना, वही तभी तो ओपन कर रहे हैं. नहीं करते नहीं तो ओपन. सो जस्ट डू इट. डू फ्रेशर्स मूड. फ्रेशर्स मूड अगर आपके यहाँ हो रहा है तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है. मैंने तो फ्रेशर्स मूड, एडीआर, डिबेट सब एक साथ किया था, एक ही हफ्ते में था सब कुछ. डिबेट में कुछ 6th वो आई थी मेरी पोजीशन. उसके बाद टॉप 8 में हम गए थे मूट में. एडीआर में पहले राउंड में बाहर हो गई थी. पर इन सब का मुझे एक्सपीरियंस तो मिल गया ना. आई नो कि हाँ कैसे फंक्शन करता है. एंड देन आई कैन डिसाइड इन द लेटर ईयर्स ऑफ माई कॉलेज कि मुझे इस चीज में फिर से पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है. तो सब चीजों में पार्टिसिपेट करो. जिस भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई एक सीनियर पकड़ो, उससे गाइडेंस लो. अपने आप नहीं करोगे तो मूड का प्रिपरेशन, अपने आप एडीआर नहीं कर पाओगे. अपने आप डिबेट कर सकते हो बट नहीं करना है तो जस्ट गो टू अ सीनियर, ask them to help you, ask them to make you understand the basic things. बहुत गर्मी है यार. Ask dumb questions, keep these seniors in loop. That's it. And you know why it is important to do everything which comes first time to you? Because the next time you try, it will be your second try and you will always have थोड़ा सा edge over others who are trying first time. Also, हम कभी fully ready नहीं होते हैं तो हमेशा बस कूद जाना चाहिए आग में. अच्छा, अब मैं इस कमिटी में ज्वाइन कर ली हूँ, कितनी कमिटीज ज्वाइन करूँ? जितनी तुम मैनेज कर सकते हो, जितना तुम्हारी इच्छा है तुम करो. 3 कमिटी, 4 कमिटी, इससे ज्यादा तो मैनेज भी नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम मैनेज कर सकते हो तो गो अहेड, डू इट. पर यार इतना याद रखना कि आसपास के लोग उतने होशियार या उतने एक्साइटेड नहीं होंगे उन चीजों को लेके, तो तुमको डिमोटिवेट नहीं होना है. बिकॉज दिस इज यू रूइनिंग योर चांस ऑफ परफॉर्मिंग, ऑफ गेटिंग एक्सपीरियंसेस. ठीक है, तो अगर बाकी लोग बहुत डॉर्मेंट हैं, यू डोंट रियली गिव दैट अ डैम एंड यू कीप डूइंग योर थिंग. ऑल्सो फर्स्ट ईयर्स को रिक्रूट करते हैं काम करने के लिए, लेकिन कभी कभार अगर समथिंग इज बॉदरिंग यू अ लॉट, यू आर नॉट इन द राइट स्टेट, यू कैन से नो. ठीक है, दैट इज अ स्किल टू लर्न. नो बोलना आना चाहिए. If you're not interested, something is bothering you, you say no. And final part to this video is the FOMO that you can get. I've seen मेरे जूनियर्स जैसे उनके फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब एक लड़की, उसने हर ऑलमोस्ट 4-6 कमिटीज में इंटरव्यू दिए, कहीं सिलेक्ट नहीं हुई. उसके फ्रेंड्स हो गए 2-2, 3-3 कमिटीज में सिलेक्ट. शी वॉज कमिटीलेस. ठीक है, उसको कोई कमिटी में नहीं लिया गया.
एंड देन शी कम्स टू मी वेरी सैड कि अब क्या करूंगी दीदी, मैं, मेरे को तो कोई कमिटी में सिलेक्ट नहीं किया। तो पता है क्या, कमिटी में होना तुमको इवेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक होमली फीलिंग देने के लिए उस स्किल के बारे में, उस एक्टिविटी में, वो उसमें बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हमारा मेन मोटिव एक्सपीरियंसेस लेना है। तो अगर ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो इट डज नॉट मीन दैट यू वर नॉट इनफ या यू आर डम्ब, इट डज नॉट मीन दैट। हमारा एक्सपीरियंस लेना मोटिव है, हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। I can still participate in a music event, I can still participate in a dance event, I can still go and give an audition for theaters. तो it is totally alright. और अगर अपनी कॉलेज की नहीं तो आप बाहर के कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बाहर जा सकते हो और एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। I know all this sounds very overwhelming or gives you a very overwhelming feeling, and I know you might feel a little scared about trying things and failing and letting people know about that you failed or people noticing that you failed, या फिर ऑफ नॉट नोइंग तुम्हें क्या एग्जैक्टली पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो, और इस चीज का भी कि क्या मैं एकेडमिक्स मिस कर दूंगी, क्या मैं सही नहीं कर रही हूँ, डू आई नीड टू बी फिगर्ड आउट फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर। क्योंकि भाई ऐसे लोग भी मिलेंगे। मुझे एक ने बोला दीदी वो सेकेंड ईयर की दीदी कह रही थी कि अब मैं नहीं, वो थर्ड ईयर की दीदी कह रही थी कि अब मैं सेकेंड ईयर में आ गई, आई नीड टू नो कि मुझे क्या करना है, अब तो मुझे पता होना चाहिए था, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो कौन है ये थर्ड ईयर वाली लड़की जिसने सब फिगर आउट कर लिया है, और तुमने कर लिया है तो हैप्पी फॉर यू, गुड। लेकिन दूसरों को इंटिमिडेट क्यों कर रहे हो? वो देखो, मेरे एग्जाम्पल मुझे नहीं देना चाहिए, बट आई एम इन फिफ्थ ईयर, कह रही थी मैं, ठीक है। व्हेन आई वाज इन फिफ्थ ईयर, आई वाज द मोस्ट कंफ्यूज्ड इन ऑल द ईयर्स ऑफ माई कॉलेज। मैंने हर महीने एक नया करियर ऑप्शन की तरफ भागने की कोशिश करी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यू नीड इट ऑल फिगर्ड आउट। आप तभी फिगर आउट कर पाओगे जब आपने वो 25 चीजें ट्राई कर रखी हैं। आपने अगर वो 25 इंटर्नशिप्स कर रखी हैं और अलग अलग जगह पर आपने ट्राई कर रखा है, अलग अलग टाइप की इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, तभी आपको पता चलेगा आप क्या करना चाहते हो। अगर आप करोगे ही नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो कैसे डिसाइड करोगे कि हाँ इसमें मजा आया नहीं आया? जस्ट बिकॉज यूर थिंकिंग यार नहीं लग रहा कि मजा आएगा इसमें, दैट डजंट मीन कि मजा नहीं आएगा इसमें। तो अगर बहुत ज्यादा सेफ खेलने के पीछे दौड़ रहे हो कि यार सब कुछ सही होना चाहिए, सही चलना चाहिए, ये सब, तो एक लास्ट बात सुन लो एंड इसके बाद वी एंड। यू हैव 5 years, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग टू प्ले सेफ। ये सही टाइम है टू अर्न दोज एक्सपीरियंसेस, टू बिल्ड स्किल्स, टू मीट दोज वर्जन्स ऑफ यू दैट यू डोंट इवन नो। लीव योर ओल्ड आइडेंटिटी out of the college gate. The version of you that shows up here is what you're building, what you want to be. ठीक है, बहुत ज्ञान लगा हो तो था ज्ञान, मुझे ये देना था, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई और रिग्रेट करे ऑफ हैविंग समथिंग ऑफ योर ओन। यू डूइंग समथिंग, कमा रहे हो, कुछ खुद का कर रहे हो, करते रहो, उसको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। दैट्स इट। I'll see you in the last episode of this series where we talk about networking and a few miscellaneous things. I'll see you in the next video. Till then, keep watching. Namaste.